بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اکیلا اور تنہا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و رسول کی ایک لمبی فہرست اور سلسلے کو جاری رکھا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام ہو اور جن کی محنت اور کاوشوں سے آج الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو دعوتی سرگرمی اور دعوت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کے ساتھ مل کر جس چیز کی نیم اور بنیاد رکھی، وہ چیز تھی دعوت توحید۔ کیونکہ جو حالات اس زمانے میں تھے وہ حالات شرک اور بت پرستی کے حالات تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کئی خداؤں کی، معبودان باطلہ کی پرستی، پوجا و عبادت کرتے تھے۔ آج کے درس کے اندر اس طرح کی ایک آیت آئے گی کہ کیوں ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید، دعوت اللہ کی نیم اور بنیاد رکھی۔ در حقیقت توحید کا معنی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی سے موحد لوگ ہوتے ہیں جو ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ کفار مشرکین کے بارے میں ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، مانتے تھے۔ ان کے نام بھی عبداللہ ہوا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، محمد بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ عبداللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ لیکن ان کی جو سب سے بڑی خرابی اور گڑبڑی اور بگاڑ جو تھی وہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کئی معبودان باطلہ کو وہ لوگ بطور خدا تصور کرتے تھے، مانتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ یقیناً معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو فتنہ و فساد برپا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو بلا بیٹھے، جس کی وجہ سے آپ یاد رکھیں، بلکہ یہ لوجیکل بات ہے کہ اگر مسلمان صرف یہ نہیں کہ کافر ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، صرف یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم مسلمان خالص اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یا ساجی ٹھہرائیں گے تو معاشرے کے اندر کبھی بھی اطمینان، سکون نہیں رہے گا، امن نہیں رہے گا۔ جہاں پر ہم اپنے معاشرے کے اندر فتنہ، فساد اور بگاڑ کی کئی وجوہات تلاش کرتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ قرآن نے ان ساری وجوہات کو رد کرتے ہوئے ایک سب سے بڑی وجہ جو بیان کی وہ ہے شرک۔ معاشرے کے اندر شرک کی وجہ سے کبھی بھی امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اور اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہی کے درس میں یہ بات آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آیت نمبر 217 سے لے کر 220 تک آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین، اور ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور سن کر اس پر عمل کی تو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 217 کے اندر بیان کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔
تو حرمت والے مہینے کے تعلق سے مختصراً میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ اب یہاں پر پوری اس کی تفصیل آ گئی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کے دین میں کیا ہے، آپ دل نہیں دین جو دین لے کر آپ آئے ہیں اس میں کیا ہے حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ مطلب اصل میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں سب سے پہلے جان لے کہ چار ہیں، چار جو ہے حرمت والے مہینے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کی طرح عربی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، 3 مہینے لگاتار یعنی پیدل پہ بیک ٹو بیک ہے، اور ایک مہینہ ابھی ہم لوگ جماعت الآخر میں ہے، ابھی جو مہینہ ہے عربی کا جماعت الآخر ہے یا جماعت الثانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور 3 تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رجب کا مہینہ ہے، تو رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ جو ہے بیچ میں ہے رجب کا مہینہ جو جماعت الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے رجب، اور 3 مہینے جو ہے وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، یعنی عربی مہینے کی 11واں مہینہ ذوالقعدہ عربی کیلنڈر کی، 12واں مہینہ ذوالحجہ اور نیا سال یعنی محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں جب ابھی اسلام کی نشو و نما نہیں ہوئی تھی اور اسلام مکمل طریقے سے عرب کے اندر مکے کے اندر پھیلا نہیں تھا، تو زمانے جاہلیت میں جو عرب والے تھے وہ لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ ان 4 مہینوں میں بڑا احترام کرتے تھے۔ احترام یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں قبیلوں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی تھی، میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی بیان کی کہ پہلے قبائل کے اندر جو لڑائیاں ہوتی تھی، جیسے مان لیجئے کہ آپ لوگ ایک قبیلے ہیں، آپ دوسرے قبیلے، تیسرا قبیلہ ہے، تو کسی ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کے شخص کو مار دیا، چاہے غلطی سے جان بوجھ کر، تو بدلے میں آپ یاد رکھیے کہ وہ عالم تھا زمانے جاہلیت میں، ان کے بدلے میں ایک آدمی کے قتل کے بدلے کے طور پر اس پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جاتا، یعنی جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ مارتے جاتے، لیکن اس جنگ کے مومنٹ میں بھی یہ 4 مہینوں میں رک جاتے تھے۔ رجب میں کوئی جھمیلا نہیں کرتے، کوئی فساد نہیں کرتے، کوئی فتنہ نہیں کرتے، کوئی لڑائی نہیں کرتے، کوئی جنگ و جدال نہیں کرتے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں سائلنٹ ہو جاتے، یعنی احترام کرتے تھے۔ اسلام نے بھی، اسلام کے آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جاہلیت میں رواج تھی، عام تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے آنے کے بعد بھی قائم رکھا، لیکن انہی چیزوں کو قائم رکھا جس کا ٹکراؤ عقیدہ سے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، انہی چیزوں کو جس سے عقیدے میں بگاڑ نہیں آئی۔ عقیدے میں اگر بگاڑ کسی چیز میں آ رہی تو اسلام نے کبھی بھی اس کو بڑھاوا نہیں دیا۔ تو یہ حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے کہ اے محمد، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ کیا ہے آپ کے دین کے اندر قتال اتار کے معاملے میں۔ اصل میں اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے ایک فوجی دستے نے ایک کافر کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور قتل کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو حرمت والے مہینے کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ چاند نکل آیا ہے اور ہم رجب کے مہینے میں آ گئے، چونکہ آج کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو پہلے کے زمانے میں چاند دیکھ کر لوگ مہینے بدلتے تھے۔ آج کوئی چاند کی طرف نہیں جاتا، کیلنڈر ہے، موبائل ہے، ہر چیز میں ٹائم ٹیبل اور آپ کا دن تاریخ بدلتے رہتے، وہاں اس وقت نہیں تھا۔ تو اس فوجی دستے نے جو مسلمانوں کا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم رجب میں، اور رجب کا مہینہ تھا کہ ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے تانا کسا کفار و مشرکین نے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تمہارا دین سے بہت بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، ہمارے یہاں بھی حرمت والے مہینے کا احترام ہے، یہ کیا خاک احترام ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مار دیا اور قیدی بنا لیے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حرمت والے مہینوں میں یا حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فیہ کیا اس میں قتال کر سکتے ہیں؟ قتال سے مراد جنگ، کسی کو مارنا، قتل کرنا، لڑائی کرنا۔ قل، اب اللہ نے جواب دیا اور اپنے نبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، ہاں بالکل اس مہینے میں، حرمت والے مہینوں میں قتال و جنگ و جدال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ نے آگے جواب دیا
वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना, व कुफ्रुम बिही, उसके साथ कुफ्र करना, वल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से लोगों को रोकना। वो हुदैबिया के मौके पर उनको रोक लिया गया था कि आप अगले साल आएंगे हज करने के लिए, रोका रोका गया था ना, आपको तो इजाजत देनी चाहिए थी, रोक देना। व इखराज अहली मिनहु अकबर इंदल्लाह, और वहां के लोगों को वहां से निकाल देना, यानी मक्का से लोगों को निकाल कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर देना। अल्लाह ने कहा वह इखराज अहलिही मिनहु अकबर, और वहां के लोगों को वहां से निकाल देना, ये उससे भी बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक। मामला असल में ऐसा है, ये शान नुज़ूल आपको समझ में आ गई कि आयत क्यों नाज़िल हुई। अब ये जानबूझ के ताना कस रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि आपके हुर्मत वाले महीने का एहतराम है, क्या खास एहतराम है? तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सबसे पहले आप जवाब दीजिए कि हुर्मत वाले महीने में किताल करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन साथ ही साथ उनको कहिए कि तुम हमको ना सिखलाओ कि हुर्मत वाले महीने का एहतराम करना है कि नहीं करना है। तुम क्या सिखाओगे? तुम तो लोगों को रोक रहे हो वहां जाने से, मस्जिद हराम जाने से रोक रहे हो, कुफ्र कर रहे हो तुम, इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हो, वहां के लोगों को वहां से निकाल रहे हो। तुम सोच रहे हो हुर्मत का महीना है, मुसलमान तो कोई एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि कुरान ने रोक दिया है उनको, अल्लाह ने रोक दिया है, और इसी महीने का सहारा लिया जाए। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं? ये लोग जानबूझकर हुर्मत वाले महीने का असल में पास और लिहाज ये हो रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, उकसा रहे हैं मुसलमानों को, ये सोच रहे हैं कि 4 महीने अच्छा मौका है कि हम कुछ भी कर देंगे, ये तो एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि 4 महीनों में किताल जंगो जिदाल अल्लाह ताला ने मना कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि उनसे कहिए यकीनन हकीकतन इन महीनों में किताल करना हराम है, कबीरा गुनाह है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम जो कुछ कर रहे हो, एक तो तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो, कुफ्र कर रहे हो तुम, इसी तरीके से तुम मस्जिद हराम से लोगों को रोक रहे हो, वहां के लोगों को तुम वहां से निकाल रहे हो, ये अल्लाह के नजदीक उससे भी बड़ा गुनाह है। यानी हुर्मत वाले महीने में किताल करना अगर गुनाह कबीरा है तो इससे बड़ा गुनाह ये है कि जो तुम कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दिया वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। आप समझ रहे हैं? वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, कत्ल में तो एक आदमी मारा जाता है, लेकिन किसी ने समाज के अंदर फितना बर्पा कर दिया तो कई हजार लोग मारे जाएंगे। वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, तुम जो फितना बर्पा किए हुए हो, रोक रहे हो लोगों को अल्लाह के रास्ते से, रजब का महीना है, हुर्मत वाला महीना है, जो तुम ना सिखाओ। आगे अल्लाह ने कहा, यहाँ पे भी एक नुक्ता याद रखें कि जैसे हुर्मत वाला महीने में हराम है कि हम जंग करें, जो भी करें, लेकिन कोई अगर आपके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि आप उसका जवाब दें। आप उसका, जैसे वो आयत पीछे गुजर चुकी है हज के मौके पर कि आप जंग हुदूद हरम में आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन कोई आपको रोके तो आप लड़। अब आप मत देखिए कि गुर्बत का महीना है, यानी इसको कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में आप कदम उठा सकते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने बचाव के लिए अपना कोई भी कदम उठा सकते हैं। अब आपके ऊपर एक हमला आवर है तो आपको अपने आप को बचाने के लिए उसको मारना ही होगा, नहीं मारने से आप मारे जाएंगे। तो अल्लाह ने बयान किया वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा है। सोच लीजिए, कत्ल सबसे बड़ा जुर्म होना चाहिए, क्योंकि कत्ल में एक आदमी मर जाता है, मरने का मतलब दुनिया में जो एक बार आया है अब दोबारा नहीं आएगा, उसकी जिंदगी का खात्मा हमने कर दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, इससे भी बड़ा फितना है, फितना बर्पा करना, फसाद बर्पा करना, इससे ही बड़ा है। अब इनके बारे में देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत अहम एक नुक्ता यहाँ पर निकल रहा है, खासकर जिस मुआशरे में और जिस माहौल में हम और आप रहते हैं। हमारा मुल्क कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ इस्लामी कानून चलते हैं, हम एक जमहूरी कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे जमहूरियत है। तो यहाँ पे सवाल बहुत सारे मामला रहते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई जिसका उठना बैठना गैर मुस्लिमों के साथ रहता है, अक्सर मामला रहते हैं। तो बहुत सारे मामला उस जहन में रहता है सवाल के तौर पर कि आया यहाँ पे ऐसे कैसे करें, वहाँ कैसे करें। यहाँ पे देखिए एक बात अल्लाह ताला ने बयान किया इन्हीं लोगों के बारे में, कुफार और मुशरिकीन के बारे में। यहाँ यहूद और नसारा के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ बात कुफार और मुशरिकीन की बात हो रही है। अल्लाह ने कहा वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, ये बराबर तुमसे लड़ते रहेंगे, ये कुफार मुशरिकीन मुसलमानों से बराबर लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, जब तक के वो अपनी ताकत भर तुमको तुम्हारे दीन से ना लौटा दे, फिर दे। बात समझ में आ रही है? यानी अल्लाह कह रहा है कुफार और मुशरिकीन इस कोशिश में लगे रहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से बदल दे, मुर्तद कर दे। यरुद्दूकुम हत्ता यरुद्दूकुम, जब तक कि तुमको लौटाना। मुर्तद का माने क्या होता है? अपने दीन को, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन को कबूल कर लेना, उस तरफ लौट जाना। रद्दा यरुद्दू का माने होता है, जैसे हम उर्दू कहते हैं कि ये ऑर्डर रद्द कर दीजिए,
लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए, इसमें कुछ मामला नहीं होना चाहिए। वही अरबी के अंदर भी है, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, जब तक कि आपको तुमको तुम्हारे दीन से ये मुर्तद ना कर दे। कब इनिस्तताऊ, जितनी उनकी ताकत है, अगर ये चाहते हैं चाहे तो ये कोशिश करते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से हटा दे। तो इसको समझना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं हमारे साथ जो उठने बैठने वाला गैर मुस्लिम भाई है वो बहुत सख्त मिजाज नहीं है, नरम मिजाज है, वो ऐसा नहीं वैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिंपल और सिम्टम बता दिया कि कुफार मुशरिकीन ये चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से हटा दे। असल में मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तो एक दारुल इम्तिहान बनाया है, यानी एग्जामिनेशन हॉल बनाया है दुनिया को, अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ने ये कहा कि देखो हम तुमको इससे बेहतर चीज बनाएंगे जन्नत, तुम इसको जन्नत मत समझो, तुम इसमें सिर्फ इम्तिहान दो, यकीन जानो कि तुमको ऐसा अजर हम अता फरमाएंगे कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। यानी जन्नत के बारे में हदीस के अंदर है कि हम क्यास और गुमान भी जहन में नहीं ला सकते कि वहां की नेमतें कैसी होंगी। तो देखिए बैठ के हम सोचे कि जन्नत में सेब इस तरह से होंगे, जैसा हम सोच रहे हैं ना उससे बेहतर हो, यानी हमारी सोच नहीं जा सकती। अल्लाह ने हमारी सोच को वहां तक पहुंचने से रोक दिया है। हमारी सोच नहीं जा सकती कि जन्नत के फल, फ्रूट्स और आराम, महल्लात, बागात, बागीचे, नहरें कैसी होंगी। तो अल्लाह ने कहा कि देखो दुनिया को तरजीह मत दो, इसको हमने इम्तिहान के लिए पैदा कर दिया है, थोड़ा सा इम्तिहान दो, मेहनत करो, मशक्कत करो, यकीन जानो कि इससे बेहतर जिंदगी वो देंगे, और वहां की जो जिंदगी होगी वो हमेशगी की जिंदगी होगी और मौत नहीं आएगी। तो हमारे साथ क्या मामला है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनके बारे में अल्लाह कह रहा, अल्लाह ये नहीं कह रहा को सबको मार दो, गैर मुस्लिमों को उनसे ताल्लुकात तोड़ दो, उनसे बात ना करो, उनसे कुछ ना करे, ये गलत बात है। कहने का मकसद समझिए, उनका एम होता है कि आपको आपके दीन से हटा दें। जैसे आजकल मुस्लिम लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, यानी गैर मुस्लिमों से निकाह और शादियां कर रही हैं, तो देखिए किस तरह के जुमला से उनको उनके दिल को बहलाया जाता है। उनको कहा जाता है देखो प्यार और मोहब्बत की कोई मजहब नहीं होता। आपको लॉजिकल बात सही लगेगी, हाँ भाई मोहब्बत को हम मजहब से क्यों जोड़ें, है ना, सुनने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। उनका मकसद क्या है? मकसद ये है, अल्लाह कह रहा है कि हत्ता यरुद्दूकुम, वो तुमसे बराबर लड़ती रही जब तक हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, जब तक कि तुमको तुम्हारे दीन से वो भटकाना है। समझ में आ रही? अल्लाह ने बयान किया। तो कहने मतलब ये कि जैसे वो अंदरूनी तौर पर, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते, तो जैसे वो जहनी और अंदरूनी तौर पर वो कोशिश में है कि हमें अपने दिन की तरफ ला दे, तो हम भी मसलहत और हिकमत के तहत अपने ईमान को मजबूत रखें कि कोई चट्टान भी आए तो टकरा जाए, वो चट्टान भी हमको ना रोक सके। बात समझ आ रही? इसका ये मन हरगिज ना निकाले कि हम गैर मुस्लिमों से बात ना करें, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात ना रखें, गैर मुस्लिम भाई से हमको अपना कोई भी लेन देन ना करें, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ मामला रखते थे, तजारत करते थे यहूदियों के साथ, तो ऐसा कोई मामला नहीं। मामला ये है कि ये टेक्निकल चीजें ध्यान में रखें कि कोई हमें दिल से हमको ना हटा सके। वो जो भी हीला बहाना तलाश करे, हम अपनी मेहनत, मुशक्कत, मसलहत, हिकमत और अल्लाह से दुआ करके हम करें कि अल्लाह कोई भी परेशानी हमारे ईमान के मुतालिक हो तो हमको साबित कदम रखना, ये दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा जब तक तुमको तुम्हारे दीन से ना हटा दे। वो मैं यर्तदिद मिनकुम, और यहाँ पे अल्लाह ने बयान कर दिया, देखिए अगर कोई मुर्तद हो गया, मुर्तद का माना होता है कि इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाए, चाहे किसी भी धर्म में चल जाए, ईसाइयत कबूल कर ले, यहूदियत कबूल कर ले, या हिंदुइज्म में चले जाए, या पारसी हो जाए, या जो भी हो जाए, ठीक है, मुर्तद उसी को कहा जाता है। अल्लाह ने कहा मैं यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, अगर कोई भी तुम में से कोई भी शख्स अपने दीन से मुर्तद हो जाए, फयमुत हुआ हुआ काफिरुन, और उसकी मौत हो जाए इस हाल में को काफिर, मुर्तद का माना ही काफिर हो गया। बात समझ आ रही है? जब हम इस्लाम को छोड़ दिए तो हम काफिर हो गया। काफिर का माना जानते हैं ना, अल्लाह का इनकार करने वाला। गैर मुस्लिमों के नजर में हम काफिर हैं क्योंकि हम उनके खुदाओं का इनकार करते हैं, नहीं मानते। अब अल्लाह ये सजा बता रहा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरा धर्म कबूल करता है तो ये वो ये ना समझे कि वो बच जाएगा, निजात नहीं मिलेगी, दुनिया में अल्लाह छोड़ देगा, क्योंकि काफिर की दुनिया जन्नत है। लेकिन बाद दफा ऐसा भी पाया गया है कि अल्लाह दुनिया में भी पकड़ करता है, आखिरत में तो कंफर्म पकड़। अब अल्लाह बयान कर रहा है कि मुर्तद की सजा क्या है। इसीलिए मेरे भाइयों, और जो लोग भी ऑफलाइन या ऑनलाइन है, ये बहुत प्यारी और बड़ी बेहतरीन आयत है कि ये आयत अगर हम अपनी बच्चियों को सुना दे या पढ़ा दे या सिखा दे, यहाँ पे मैं
थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहूँगा कि जो हालात हमारे माशरे के हैं ये बड़े चिंताजनक हैं, यानी सोचने वाले माहौल है। मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम हो जा रही है, निकाह कर ले रही है, इस तरह के जुमला से कि मोहब्बत की कोई रेखा, कोई सीमा नहीं होती, कोई हद नहीं होते, उनको ये आयत मालूम होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जो कोशिश की है कुरान के तर्जुमे की, मैं दिली तौर पर कहूँ तो ये मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि ये बहुत बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया। एक भी लोग अगर इससे मुतासिर हो गए और उनकी इस्लाह हो गई तो अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया। ये मान के चलो कि अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत को कबूल कर लिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कोई जुर्म होता है, चाहे वो इस्लामी शरीयत का कानून के खिलाफ हो या इंडियन लॉ के खिलाफ हो, तो जुर्म की जो सजा मुतय्यन होती है, हमें उस सजा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी की वजह से इंसान जुर्म जो है बहुत ज्यादा करता है। जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद उसके दिल में 1% ही सही लेकिन डर पैदा होगा। इसीलिए शरीयत इस्लामिया के अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े सजा है जुर्म के लिए, उतनी सजा तो इंडियन कानून में भी नहीं। जैसे कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, कोई चोरी कर ले उसकी एक मिकदार है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, कोई अगर शादीशुदा है जिना कर ले तो जमीन में कमर तक धंसा कर पत्थर मारा जाए, उसको रजम कहते हैं, यहाँ तक कि वो मर ना जाए। कुआरे में जिना कर रहा है तो उसको 80 या 90 कोड़े मारे जाएंगे। ये इतने बड़े बड़े सजा है कि रुआ कांप, मतलब दिल जो कांप जाएगा कि नहीं नहीं उससे बेहतर ना किया जाए इतना सजा। और सजा सिर्फ मुतय्यन नहीं करना है, उसको अमल में लाना है, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? बात समझ आ रही ना? उसी तरीके से जो हमारी बहनें हैं जो किसी वजह से मिसगाइड कर कह सकते हैं या गलतफहमी का शिकार होकर जो भी इस तरह के अकदाम उठा रही हैं, तो उनमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि गार्जियन ने कभी ये आयत उनको पढ़ाया नहीं। वो आयत क्या सुनिए, अल्लाह ने कहा मैं यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाए, दीन से मुराद दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाए, फयमुत वह काफिर, और उसकी मौत कुफ्र की हालत में हो जाए और मर जाए साल को काफिर हो, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह कह रहा है कि उसके सारे आमाल गारत हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी जो कुछ यहाँ पे किया, एक मुसलमान था 60 साल की उसकी उम्र थी, 60 साल तक मुसलमान रहा, रोजा रखा, नमाज पढ़ा, ज़कात दिया, हज किया, 60 के बाद वो गैर मुस्लिम हो गया। तो अल्लाह कह रहा है कि नहीं नहीं, वो जो पहले जो किया है वो भूल जाइए उसको। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि नहीं इतने सालों तक तो अल्लाह की इबादत किया, नहीं, जैसे उसने अल्लाह का इनकार किया उसके सारे आमाल रायगा हो गए, बर्बाद हो गए। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक गैर मुस्लिम है 60 साल तक गैर मुस्लिम रहा, जैसे उसने इस्लाम कबूल किया उसके सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। ये मुर्तद के बारे में है कि अल्लाह कह रहा है फउलाइका, यही वो लोग है हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, जिनके सारे के सारे आमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी मरने के बाद कुछ उससे नहीं मिलेगा, सब गलत हो गए, बर्बाद हो गए। वउलाइका असहाबुन नार, यही वो लोग जो जहन्नम वाले हैं, असहाबुन नार है जहन्नम वाले हैं, यानी इनकी सजा क्या है? जहन्नम है, और सिर्फ जहन्नम ही नहीं, हुम फीहा खालिदून, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये आयत अगर हम अपनी नस्लों को पढ़ा दें तो कभी सोचेंगे मुर्तद होने के बारे में, चाहे कोई कितना भी सब्ज बाग दिखा दे। तो ये जो दरस कुरान का जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, ये बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। इसीलिए कभी भी नेकी को हल्की मत समझे। छोटे काम है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उससे क्या होने नहीं। आप नहीं जानते कि आपकी मजलिस में फरिश्ते बैठे हैं जो गवाह बन रहे हैं आप लोगों के लिए, या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये आयत हम अपनी नस्लों को पढ़ा दें तो हमारी नस्ल ये कदम नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, अमान गारत हो जाएंगे, जन्नत भूल ही जाइए, जितने हमने मेहनत की सब खत्म, तो ये कदम कभी नहीं उठाएंगे। उसके बाद आयत नंबर 218 में अल्लाह ने बयान किया इन्नल लजीना आमनु, बेशक ईमान लाने वाले, यानी जिन लोगों ने ईमान लाया, वल्लजीना हाजरू, और हिजरत करने वाले, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, यही वो लोग जो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। रहमत इलाही के उम्मीदवार अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ईमान लाना होगा। ईमान लाने के बाद हिजरत करना। हिजरत सिर्फ ये नहीं है, देखिए हिजरत का जो माना असल में हम सोचते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हिजरत हुआ, मक्का छोड़कर मुसलमान मदीना चले गए, वो तो हिजरत है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लेकिन हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सबसे बेहतर हिजरत ये है कि इंसान अल्लाह की हराम करदा चीजों को छोड़ दे। ये भी अल्लाह के नबी ने कहा। देखिए इस्लाम का कानून
کہ اسلام نے کبھی بھی ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونا نہیں دیا. جیسے ہو سکتا ہے ہم سوچے یا اللہ تم نے ابھی کیوں پیدا کیا, صحابہ کے ٹائم پیدا کرتے تو ہم اس وقت ہجرت بھی کر لیتے. یا اللہ تو نے ابھی کیوں پیدا کیا, اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے تو ہم جنگ بدر میں شریک ہو جاتے, اس وقت پیدا ہوتے جنگ احد کا حصہ بن جاتے, اس وقت پیدا ہوتے تو ابو ہریرہ کے ساتھ حدیث بیان کرتے. سوچ سکتے کہ نہیں سوچ سکتے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس کمتری سے بچایا ہے. کیا اللہ کے رسول نے کہا, حقیقی ہجرت وہ ہے, حقیقی ہجرت وہ ہے کہ انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. حجرہ یہجر کا معنی چھوڑنے کے معنی ہوتا ہے. ہجرت کہا جاتا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو بیان کیا, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا یہ حرام, اس کو چھوڑ دے. رسول نے کہا یہ حرام, اس کو چھوڑ دے. شریعت نے کہا یہ حرام چیز, اس کو چھوڑ دے. چھوڑ رہے ہیں. جیسے ہمیں سے الحمدللہ کوئی شراب نہیں پیتا تو ہم لوگ مہاجر ہیں. اب کیا سمجھ رہے اس چیز کو؟ الحمدللہ ہم لوگ مہاجر ہیں, ہم ہجرت کیے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہم نے, تو ہم مہاجر کہلائے. یہاں بھی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی کے ہم امیدوار بنے, یعنی اللہ کی رحمت ہمارے لیے خاص ہو جائے, ہمارے اہل و عیال کے لیے خاص ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایمان لانا ہوگا. ایمان لانے کے بعد ہجرت کرنا ہوگا. پھر وہی سوال پیدا ہوگا, ہجرت کیسے ہوگا؟ وہی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. ہجرت ابھی بھی کر سکتے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. تو جہاد کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہے جیسے معنی تو کوشش کرنا, لگے رہنا. تو ایک جہاد وہ ہے جو اس زمانے میں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جنگ بدر کہہ سکتے ہیں, جنگ احد, خندق, خیبر, صلح حدیبیہ, بہت سارے جو اس زمانے میں ہوئے. آج کے زمانے میں جہاد ہو سکتا ہے. جہاد کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے نفس سے لڑنا, اپنے نفس سے لڑنا. ظاہر سی بات ہے ہمارا نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. نفس کیا ہے؟ ہمارا نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. جیسے ابھی عشاء کی اذان ہوگی, نفس کیا کرے گا کہ بعد میں پڑھ لیں گے, 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا سوتے ٹائم آپ ٹھیک ہے کام میں پھنسے 10 بجے کا وقت لے لیے. اب 10 بجے گئے تو ٹھنڈی کا موسم ہے, تو نفس کہے گا کہ 11 بجے پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیے پریکٹیکل بات ہے کیسے نفس جو ہے گمراہ کرتا ہے انسان کو. 11 ہونے لگتا ہے تو بتی بجھنے لگتی, نیند آنے لگتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں فجر میں قضا پڑھ لوں گا. پھر اس طرح کرتے کرتے کئی دن ہو جاتا ہے, آپ بھول بھی جاتے ہیں, کیا پتا اللہ جانے قضا ہوا بھی کہ نہیں. تو نفس سے بھی لڑنا ہے. نفس ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرے گا. نفس ہمیں دوسروں کو, ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا کے لائے گا جو خود برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں, کہ دیکھو وہ کیسے ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم آج کے زمانے میں بھی جہاد کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے جہاد؟ کہ اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچا لینا. ورنہ نفس برائی کی طرف لے جا رہا ہے, ہم کو اس کو مات دے کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول فرمائی. اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 219 کے اندر, یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے کہ آج اگر ہم لوگ شعور والے ہیں, الحمدللہ سب 28, 25, 30 کی عمر کے ہم لوگ ہیں, تو ایک شعور ہمارے اندر آ چکا ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کب دین ہوگی کب رات ہوگی, جانتے ہیں. تو اگر ہم دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کو جس سے دنیا سجی ہوئی ہے, جس سے دنیا رنگین نظر آتی ہے. اس زمانے میں 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بیان کیا. اس زمانے میں جیسے امیروں کے مجلس سے آپ جائیں گے, اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ والا ہو, تو شراب کباب کا وہاں پہ انتظام رہتا ہے. امیروں کی, امیر چھوڑ دیجیے, آپ فلائٹ میں جائیے نا, اچھا تو بڑے فلائٹ میں جائیے, آپ وہاں پہ آپ کو جو ہے شراب سرو کیا جاتا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. یعنی یہ ایک عام بات ہو گئی ہے, سماج سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے. جیسے پانی, آدمی لوگ مہمان آتا ہے, جیسے ہم آئے ہوئے تھے, آپ نے یہاں پانی رکھ دیا, تو پانی ایک عام چیز ہے. چل کر آئے, دور سے آئے, گلا سوکھا ہوگا, پانی پی سکتے ہیں, پی کر تو سستا لے. تو شراب کا بھی چلن آج کے زمانے میں ایسا ہی ہو گیا ہے. لیکن یہ دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی, یعنی جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی پرواہ کی کہ ہم کیسے ہم فٹ رہیں,
हमारी सेहत कैसे अच्छी रहे, हम वेल्थ रहे या हेल्दी रहे, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजाम किया। ए नबी, आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में सवाल करते हैं। सवाल से मुराद पूछते हैं, अच्छा मोहम्मद ठीक है, हम तुम्हारे दीन को कबूल करेंगे, ये बताओ तुम्हारे दीन में शराब की क्या अहमियत है, शराब का क्या मामला है, जुए का क्या मामला है। तो अल्लाह ने कहा कुल, ए नबी आप कह दीजिए, फी हिमा इस्मुन कबीर, उसमें तो बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें बहुत बड़ा गुनाह है। किसमें? शराब में और जुए में बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह से मुराद हराम है, गुनाह कबीरा जिसको कहा जाता है। जैसे वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है, शिर्क करना गुनाह कबीरा है। शराब के बारे में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया आज से 1415 साल पहले, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए नबी आप कह दीजिए कि उसमें बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नासी, हाँ इंसानों के लिए उसमें मुनाफा है, इंसान उसमें फायदा देखता है। इसका तर्जुमा समझिए, इंसानों के लिए मुनाफे है, फायदा मंद है। वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इसके फायदे से ज्यादा बड़ा उसका गुनाह है। इंसानों के लिए फायदा मतलब असल में क्या है, दलील ये दी जाती है। बाद लोग कहते हैं कि देखिए शराब तो हराम है, लेकिन गम भुलाने के लिए हम पीते हैं। तकलीफ में रहते हैं तो पीने से गम भूल जाते हैं। गम क्या, अपने आप को भूल जाते हैं, होश ही में नहीं रहते आप। शराब पीने के बाद आप गम ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं कि आपके बदन पे कपड़ा भी है कि नहीं, लुंगी सही से बंधा है कि नहीं, शर्ट है कि नहीं, पर्स है कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं। आप गम भुलाने गए, सब कुछ भूल गए, आप ही को नहीं पता हम कहाँ पे हैं। इल्ला माशा, जब आपको होश आएगा तो पता चलेगा कि आप कूड़े करकट पे गिरे हुए थे, या कुत्तों के बीच में सोए हुए थे, या नाली में गिर गए। एक ये दलील दी जाती है। दूसरी दलील ये है कि देखिए असल में शराब के अंदर जो है चुस्ती फुर्ती आ जाता है पीने से बदन में, और उसको कुरान ने जिक्र किया भी, समझ ले ये बहुत बड़ी बात है। जो दलाइल आज के जमाने में दी जाती हैं, अल्लाह ताला ने उसको बयान किया, मनाफिउ लिन्नास, इसका माना क्या हुआ, लोगों के लिए बज़ाहिर फायदा लगता है। मुनाफे, मुनाफे उर्दू का लफ्ज भी है, फायदा घाटा इस तरह। तो ये लोग दलील इस तरह दी जाती है कि देखिए ऐसा है कि थोड़ा शराब पी लेने से, मानते हराम है, लेकिन पी लेने से थोड़ा सा बदन में चुस्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, और जो है कि हम सुस्ती से बच जाते हैं, चुस्त फुर्त हो जाते हैं। इस तरह की दलील दी जाती है। हालात ऐसे है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने, वही हिजरत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों को छोड़ देना, ये हिजरत है, ये हिजरत है। यहाँ पे बयान भी आ गया कि शराब के मामलात में गैर मुस्लिमों की क्या बात की जाए। हमारे अपने ही लोग जो मुसलमान भाई हैं इस तरीके से शराब नोशी का शिकार है कि जैसे रोज़ाना उनके लिए खाना पीना हलाल है, रोज़ाना सोना उठना बैठना और बाथरूम जाना जरूरी है, उस तरीके से रोज़ाना शराब भी पीते हैं, उस तरीके से शराब भी पीते हैं। और आलम देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिफाई करना, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप गुनाह कर रहे हैं, मानिए हमने गुनाह किया, आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश मत कीजिए। अब जैसे गिलास है, अब हम कह रहे हैं कि ये गैस चूल्हा है, और हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए अगर हम कैरोसिन तेल डालकर माचिस मारते हैं तो आग निकल जाएगा, इससे भी आप खाना पका सकते हैं, इसको ऐसे रख दीजिए तो गर्म हो जाएगा, खाना पक जाएगा। जस्टिफाई करना इसी को कहा जाता है। बिल्कुल कहाँ के तार को कहाँ पे जोड़ देना, कहाँ के तार को कहाँ के जोड़ देना, इस तरह का मामला है। मेरे मेरे साथ एक साबका पड़ा एक आदमी का जो शराबी था, और ताल्लुकात में चूंकि है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह अगर हम लोगों से भी साबिता पड़े तो उसकी इस्लाह करना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। इस्लाह करे, तरीके से करे, कायदे से करे, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक और एक बेक नहीं हो जाती। तो उसके घर वाले बड़े परेशान थे, और क्योंकि ताल्लुकात में है तो हमसे कहा गया आप ही समझाएं कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वही जो है रात होते ही आप शराब पी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको मैंने इस्लाह किया कि भाई आप शराब वगैरह ना पिए, ये हराम चीज़ है, उसकी जगह पे अच्छी चीज़ पिए, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला पसंद करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्हीं का मामला है, उनका ऐसे बात बताते हैं कि नहीं आप सब क्या बोले, बहुत दिन से हो गया छोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है हम शराब के अलावा कोई दूसरा हराम काम नहीं करते। ये जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? हम शराब के अलावा हम दूसरा कोई हराम चीज़ नहीं खाते ना पीते। अब उसने अपना कहानी बताने लगा कि मैं जाता हूँ शराब पीने, तो कुछ गैर मुस्लिम दोस्त लोग हैं, तो शराब के साथ वो चिकन का गोश्त भी लोग खाते हैं ना। तो वो बताने लगा कि मेरे सामने वो लेकर आता है, लोग तो हम नहीं खाते हैं गैर मुस्लिम होकर। बोले क्यों नहीं खाते हैं? वो झटके का है, वो हराम है। जा, वो कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम मेरे दोस्त वगैरह हैं वो लेकर आते तो मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते? तो वो हराम है, झटके का है। और जो पी रहे वो क्या है? अजीब तरह की बात, इसी को जस्टिफाई कहा जाता है। किसी तरीके से हम अपने आप को दुरुस्त साबित कर दें, यानी उसको इतना पता है
کہ झटके का मुर्गी नहीं खाना चाहिए। ये नहीं पता कि शराब हराम है, अल्लाह ने कहा कुल इस्मुहुमा या कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दीजिए कि उसमें बहुत बड़ा गुनाह है। बज़ाहिर लोगों के लिए फायदा है, लेकिन उसका फायदा जो है उससे बड़ा उसका गुनाह है। गुनाह बहुत ज्यादा, कुछ फायदा नहीं है। वो यसअलूनका माज़ा युनफिकून, फिर वो सवाल आए जो पीछे गुजर चुकी हैं, तो सवाल करते हैं यसअलूनका माज़ा युनफिकून कि क्या कुछ खर्च करें। यहाँ भी वही सवाल है, ए नबी आपसे सवाल करते हैं माज़ा युनफिकून, क्या कुछ खर्च करें। कुलिल अफवा, आप कह दीजिए कि जरूरत से जायज चीज, यानी जरूरत को पूरी करने के बाद जो चीजें बच जाती है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। असल में इस आयत करीमा का ताल्लुक ज़कात की फर्जियत से पहले का है। ज़कात का जब मसला आ गया, फर्ज होगी ज़कात, तो उसमें सारे जो है हिसाब किताब फिक्स कर दिए गए हैं कि ज़कात कौन लोग अदा करेंगे, कितना माल हो, और ज़कात की जो दो चीजें शर्त हैं, एक है कि उसके ऊपर माल निसाब को पहुंचे, दूसरा है कि 1 साल का उस पर गुजर हो, तो ही ज़कात फर्ज होगा, उसके अलावा ज़कात फर्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये आयत करीमा ज़कात की फर्जियत से पहले की, यानी जरूरत पूरी करने के बाद सारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। यहाँ पे कहा कि कुल अफवा, आगे अल्लाह बयान कर रहा है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है वादी तौर पर, ताकि तुम सोचो, गौर फिक्र करो, सोचो गौर फिक्र करो। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है फिर दुनिया वल आखिरती, और दुनिया व आखिरत के मामलात में या उमूर में, वो यसअलूनका अनिल यतामा, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैंने शुरू तमहीद में ही बयान किया कि आयत आएगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है और हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है, कि उसको हम समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक तबके का जिक्र है यतीमों के बारे में। यतीम की जमा आती है यतामा अरबी के अंदर, और उर्दू में यतीमों आते हैं, ऐताम भी आता है अरबी के अंदर उसकी जमा। ए नबी आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। देखिए ये कब ऐसी, मतलब समाज के हर तबके पर शरीयत इस्लामिया की नज़र है। अल्लाह ताला ने, इसीलिए ये दिन इतना पाकीज़ा दिन कहा जाता है कि कोई ऐसा तबका आप उठा के लाइए समाज में, या कोई ऐसा मामला जिसका ताल्लुक किताब और सुन्नत से, जो बिल्कुल हट कर है, अलग है, चाहे खाने पीने के मामला हो, चाहे उठने बैठने के, या सोने के, जागने के, मिलने के, जुलने के, हर मामलात में कुरान और हदीस ने हमारी और आपकी रहनुमाई की। अब यहाँ पे एक तबके का जिक्र यतीम, यतीम के बारे में भी शॉर्ट में ये बात गुजर चुकी थी। यतीम कहते जिसका सर से बाप का साया ना, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे आप गल्फ में जाए तो वहाँ बड़े कम ही लोग गरीब पाए जाते हैं, लेकिन आप अफ्रीका में चले जाएं तो अक्सर और बेशतर ममालिक गुर्बत की दहलीज पर है, बल्कि उससे भी नीचे है, अफ्रीका बर आजम में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, चाहे घाना हो, सेनेगल हो, या जाम्बिया हो, इस तरह के बहुत सी कंट्री हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, गुर्बत में। अब ऐसे मामलात में अल्लाह ताला ने जब यतीमों का जिक्र किया, यतीमों का जिक्र करने का मतलब क्या हुआ। देखिए एक परिवार है, उस परिवार का मुखिया, उसका गार्जियन, उसका बाप होता है। बाप चाहे कुछ भी ना करे, काम काज भी ना करे, तो एक हिम्मत और हौसले का नाम है बाप, कि हमारे गार्जियन है, आज नहीं करते कल कर सकते हैं, आज नहीं सुधर रहे कल सुधर जाएंगे, कल तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन बाप हो ही ना तो हम आजकल की बात ही नहीं कर सकते, उम्मीद ही नहीं लगा सकते, चाहे बिगड़ने सुधरने की बात ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। तो जिसका बाप नहीं होता उसको यतीम कहा जाता है। अरबी के अंदर शरीयत के यही कानून है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में आयत नाज़िल कर दी, और अल्लाह ने कहा कि यसअलूनका अनिल यतामा, ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपके दीन को मानेंगे, बताइए कि आपके दीन में यतीम की क्या मामला है, क्या अहमियत है। कुल, आप कह दीजिए इस्लाहु लहु खैरुन, उनकी खैर खाई करो तो बेहतर है, उनके लिए तुम खैर खाई करो तो बेहतर है। और इस चीज को देखिए, समझना होगा, किसी भी चीज को समझने के लिए आप अपने आप को उस जगह पर रख देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा। यतीम हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिद नहीं है, इंतकाल करें किसी वजह से, अचानक तबीयत खराब हो गई, किडनी खराब हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोई ना कोई वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। अब उनके पीछे उनके बच्चे हैं, किसी की 2-2 लड़कियां हैं, 2-2 बेटे हैं, 3 लड़की 2 बेटे 4 लड़के, इतने इतने हैं। अब बीवी है, बेवा हो गई। तो अभी मैंने बताया ना कि परिवार जो है अपने गार्जियन के ऊपर टिका रहता है, कि कोई भी हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरा गार्जियन है जो मुझे संभाल देगा, संभाल लेगा। अब ऐसे मामलात में हमारे माशरे में ऐसे यतीम लोग हैं, परिवार हैं, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सोचना होगा, क्योंकि वो औरत कहाँ से लाई। बिलखुसूस आज के ज़माने में जिस तरीके से लोगों के नजरें और निगाह हैं, कि किसी ज़माने में मुसलमानों के अंदर जो हमारे आबा व अजदाद हैं,
हो सकता है अकायद में बहुत बुरे थे, लेकिन मामलात उनके बहुत दुरुस्त होते थे। वो समझते थे कि गरीब आदमी है, तो इतनी जगह से खाना आता था, साल साल भर नहीं बल्कि जवान कर देते थे उसको, पाल पोस के जवान कर देते थे। और यतीमों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने यतीम के हाथ पर सर फेरा, मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह हूँ। यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये वो उसका बाप होगा, वो आदमी होगा जिसने यतीम के हाथ पर सर पर हाथ फेरा। इतनी बड़ी अजर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अब खुद सोचिए, हमारी लड़की है, अल्लाह ना करे हमारा इंतकाल हो जाए, तो कौन देखेगा इसमें? कोई जाएगा एक टाइम का खाना दे देगा, 1 साल 2 साल बकरीद आएगा तो ईद आएगा तो कपड़ा दे देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेगा। लेकिन शरीयत ने कहा लो, शरीयत ने कहा तुमको लेना होगा। वो लोग कहाँ जाएगी वो लड़की, कहाँ कहाँ ठोकर खाएगी। और जिस हिसाब से लोगों की नजरें और निगाहें हैं कि आज के जमाने में, अल्लाह माफ करें, अगर किसी का इंतकाल हो जा रहा है किसी गार्जियन का, तो लोग उसकी बीवी पर नजर रख रहे हैं कि कब उसे फायदा उठाया जाए। आपको हैरानी होगी जानकर, ये कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये हकीकत है कि मुआशरे के अंदर अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जा रहा है और उसकी बीवी जवान है, बच्चे छोटे हैं, तो लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई मदद को आगे नहीं बढ़ रहा है, उस औरत को फायदा उठाया जिस्मानी तौर पर। ये कितनी अजीब और गरीब और शर्म की बात है कि हम मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मुआशरे में कोई ये चीजें खुलेआम हो रही है। वो औरत मरती भी क्या ना करती, मरता क्या ना करता, कैसे पेट पालेगी अपने बच्चों को। ये मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसका कदम सही है, वो ठीक कदम उठा रही है, वो जिना है, जिना की जो सजा वो कर रहे हैं वो उसकी मुस्तहिक है, अल्लाह के नजर में गुनहगार है, इसमें कोई शक शुबा गुंजाइश नहीं। आप सब्र करें, नहीं हो पा रहा था निकाह कर ले। लेकिन सवाल ये है कि मुआशरे को हमने इतना खराब बना दिया है कि अब निकाह भी तो नहीं हो रहा है, अब निकाह भी कोई नहीं करना चाहता। अब देखिए नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला निकाह किए हज़रत खदीजा से, हज़रत खदीजा का तीसरा निकाह था, तीसरा निकाह था, 2 निकाह उनका हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3rd नंबर के शौहर थे, हस्बैंड थे। लेकिन अल्लाह के रसूल का पहला निकाह था, ये भी देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह था। हज़रत खदीजा के ऑलरेडी एक बच्चा भी था, बेटा, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप की तरह उनको परवरिश किया, जवान किया। ये चीजें हमारे नबी की जिंदगी में मौजूद है, लेकिन हमारा आजकल ऐसा रुझान नहीं है। कोई बेवा हो गई, आप ठीक है यतीम की मदद नहीं कर सकते, आप शादी कर लीजिए उस औरत से और बाप की तरह बन जाइए। याद रखें कि दुनिया सब कुछ नहीं है, आपको मरने के बाद हो सकता है अल्लाह ताला आपको इसी फेल पर जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। लेकिन हालात संगीन होते जा रहे, कोई तैयार नहीं बेवा का हाथ थामने के लिए, कोई तैयार नहीं हो रहा। और तो और यतीमों की किफालत के लिए माँ जो जो स्टेप कदम उठा रही है, उसके अपने मैके वाले उसको भगा दे रहे हैं, उसके भाभी भैया कब तक आपको लेके रखेंगे। बीबी ऐसी आ रही है जो अपने शौहर को प्रेशर दे रही है कि आपकी बहन कब तक यहाँ रहेगी, हम ही लोग एक तो बच्चे हुए हैं, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। ये सब बातें क्यों आती है? दीन की तालीम में। ठीक है, जो औरत बोल रही है, अल्लाह ना करे उसका शौहर इंतकाल कर जाए और अल्लाह उसके साथ से हालात पैदा कर दे, तो उसको अंदाजा होगा कि हमने किसी के साथ ज्यादती की थी, हमें उसका सहारा बनना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यसअलूनका अनिल यतामा, आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, आप कहिए इस्लाहुल लहुम खैरुन, तुम उनके लिए खैर करो तो बेहतर है, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए कुछ अच्छा करो बेहतर है। व इन तुखालितुहुम फइख्वानुकुम, अगर तुम कुछ उसमें मिला लो, अपने माल को उसके माल में मिला लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। असल में ऐसा मामला ये हुआ कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा डर गए, है ना, अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि यतीम का माल ना खाओ नाक तरीके से। सहाबा डर गए, सहाबा ऐसा करने लगे, यतीमों की फलत करने लगे। करते करते भी आयत नाजिल हुई तो वो खाना खा के बच्चा छोड़ता था, सहाबा नहीं खाते कि नहीं ये जाती हो जाएगी, हम उसका माल क्यों खाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वह इन तो खालितुहुम फइख्वानुकुम, अगर तुम अपने माल को उसके माल में मिला भी दो कोई बात नहीं, तुम उसके भाई हो, वो भी तुम्हारा भाई है। इतनी सहाबा डर गए। वो बच्चा खाना खा के छोड़ता तो सहाबा नहीं खाते, उसको रख देते, नहीं तुम भी रात को खाओ, खाना भी अलग अलग बनता था। हाँ अलग बनता था, नहीं खाना मत मिला, खाना भी अलग बनाते थे। तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, ऐसा ऐसा बात नहीं, डरने की बात नहीं, अगर तुम अपने माल उसके माल में मिला लो तो बेहतर है, तुम्हारे भाई हो, इख्वानुकुम, तुम भाई हो। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है कौन फसाद बर्पा करने वाले हैं और कौन इस्लाह करने वाले हैं। बात समझ रहे ना, डरो मत, साहबा को अल्लाह का डरने की बात नहीं। अरे अल्लाह को पता है कौन किस नियत से मिला रहा है, हड़पने की नियत से मिला रहा है कि उसको अच्छा करने की नियत से मिला रहा है, अल्लाह सब चीज को जानता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तुम्हारी मुश्किलात और मुशक्कत पैदा कर देता। मुशक्कत मतलब ये हुक्म ही नहीं देता कि मिलाओ, अलग ही कर देता। लेकिन अल्लाह कह रहा है वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अल्लाह चाहता तो मुशक्कत कर देता, लेकिन मुशक्कत नहीं किया। माल अपना माल मिला ले, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब
हिकमत वाला है। ये यतीमों के बारे में बड़ी बेहतरीन और प्यारी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। इसीलिए हमारे मिजाज में, सोच में खिदमत खल्क को बढ़ावा देने की जरूरत है, खासकर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब इस्तिताअत बनाया। अपनी माल को सही जगह पे आप इस्तेमाल करें। मालदार होना कोई बुराई नहीं। क्या उस्मान गनी मालदार नहीं थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार नहीं थे? मालदार होना कोई बुराई, कोई गुनाह नहीं। सबसे बेहतर काम ये कि अल्लाह ने जब दिया है वो तो माल भी, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा किया। ये औलाद है, ये भी आजमाइश है। अल्लाह जो दे रहा है वो भी आजमाइश है। उस आजमाइश पे हमें खड़े उतरना है, कैसे कामयाब होना है। तो हम इस तरीके से एक, देखिए ये पूरे तो पैमाने, बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, लेकिन हम छोटे ही पैमाने पे कर लेते हैं। अल्लाह ताकत दी कि कोई यतीम हो, उसकी हम किफालत करें, खुफिया तौर पर करें, किसी को पता ना चले, और दीन के जो सही अहकामात हैं उस औरत को हम ये तलकीन भी करें कि आप निकाह करें। आप ये मत सोचिए कि मेरा शोहर कैसा निकलेगा, मेरे बेटे, आजकल इसी सोच कर लड़कियां निकाह नहीं करती कि नहीं हम निकाह नहीं करेंगे, वो मेरे बेटे को देखेगा, नहीं देखेगा, हम इसी रह जाएंगे। नहीं आप करें। अरे आपको बेटे को क्या देखेगा? अल्लाह देखने वाला है। हमें और आपको कौन देखेगा? हम हमारे आपको तुम्हें देखेंगे। वो अल्लाह हम लोगों को देख रहा है, आज तक देख ही रहा है, इंशाल्लाह आगे भी देखेगा। तो इस तरह के एक माहौल बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, इस तरह के लोगों को मिलकर यतीमों की किफायत, उनको लगे ना कि हमारे वालिद साहब, और ना समझ में आए दर्द। तो जो लोग अल्लाह ने जिनको औलाद दिया है वो सोचिए कि अगर हम मर गए तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। अगर हम चले गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको लंबी हयात, लंबी उम्र दे और सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन। यहाँ तक दर्स मुकम्मल हो गया। आज का जो दर्स था, इसमें जो भी सवालात हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले लिख कर और ऑफलाइन वाले पूछ सकते हैं। तो सर यतीम अगर दीनदार ना रहे, तो इस्लाम में एक शर्त ये भी है ना कि आप जहाँ दे रहे हैं वो ज़मीन जरखेज होनी चाहिए। सवाल ये कि यतीम की हम किफालत करना चाहिए, वो दीनदार नहीं। तो इसमें तो सब कोई ये बात अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लगु अन्नी वलौ आया, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हर मुसलमान मुबल्लिग है, दाई है। ये तो मेरा पहला काम है। ये तो यतीम की किफालत तो बहुत पीछे हो गया। कोई यतीम हो चाहे ना हो, हमको तो दाई बनना है, दावत का काम करना है, फैलाना है, ठीक है। तो जाहिर पे जब हम दावत का काम करेंगे, जिसको देंगे उसको नहीं करेंगे, समझ रही? जिसको हम दे रहे, मदद कर रहे हैं। और मेरा काम क्या है? खुद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ए नबी, आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। दावत का काम का असल में हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं कि देखो हम उसको इतना कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, मेरा बात सुनने नहीं कर, हम नहीं देंगे उसको, जाओ। बात समझा रही ना? ये सवाल था कि हम जिसको दे रहे हैं तो उसको दीनदार नहीं, तो हमको तो दीनी तालीमात उसको शुरू से ही देना है, सबको देना है। और जब हम यतीम की किफालत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम तो उसको दीन की बात बता कर देंगे ना, तरीके से देंगे, उस पर हम नजर भी रखेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, वो जिम्मेदार है। जैसे हज़रत आयशा सिद्दीका पर वो तोहमत लग गई बच्चन में, है ना? इस सूरह तौबा में 10 आयत नाजिल, ऐसे नूर के अंदर 10 आयत नाजिल हुई, उनके ऊपर तोहमत लग गया, उनके कैरेक्टर के ऊपर। अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे जिनकी किफायत अबू बकर सिद्दीक करते थे। अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी आयशा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तुमको आज के बाद कुछ नहीं दूंगा, तुमने मेरी बेटी की बात में तायद कर दी कि हाँ वैसी है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी कि आप कौन होते हैं उसको नहीं देने वाले? आपको किसने हक दिया कि आप उसको नहीं देंगे? आप अपना काम करते जाए, वो पाक दामा नहीं, अल्लाह साबित कर देगा, ये अल्लाह का काम है। तो अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ तुम उससे माफी मांगो जिसको तुमने मना किया था, और फिर माफी मांग कर उनका पैसा वजीफा उन्होंने चालू किया। अब सोचे प्रैक्टिकल बात, कोई हम लोग बेटी पर तहमत लगा दे तो हम उसके साथ बात करेंगे? वो सहाबा थे, वो भी जज्बाती हो गए, लेकिन आयत नाजिल हो गई नहीं, आप करते रहे। तो जिस आदमी ने अबू बकर सिद्दीक की बेटी पर तहमत लगा दी, माई आयशा पर लगा दिया, कुरान ने कहा कि नहीं उसकी तुम किफालत करते रहो, छोड़ो मत। तो जो उनका सवाल था सही सवाल है कि भाई दीनदार होना चाहिए, लेकिन हमारा काम है दीन पहुंचाना, वो करे ना करे उसका जिम्मेदार हो। यहाँ सर शराब के बारे में बात आई, मुसलमान माशरे में शराब को जितना बुरा माना जाता है उतना सिगरेट और छोटे छोटे जो अलग चीज़ है उसको उतना बुरा नहीं माना, वो नॉर्मल हो चुका है। हाँ वही बात है कि जैसे सवाल ये है कि शराब के बारे में बात आई, आयत गुजरी कि शराब जो है कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा
सवाल जवाब का सिलसिला। शुरू। सवाल ये था कि जैसे शराब के बारे में आयत गुजरी कि ऐ नबी आपसे सवाल के बारे में पूछते हैं, तो अल्लाह ने कहा कह दिया कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है सवाल शराब और जुए में। तो क्या से जैसे हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में शराब को तो हराम समझा जाता है, जो पीते वो भी जानते हैं कि हराम है, जो नहीं पीते वो भी जानते हैं। लेकिन शराब जैसी बहुत सारी चीज़ें मुआशरे में हैं, जैसे आप गुटखा कह सकते हैं, खैनी कह सकते हैं, या सिगरेट वगैरह जो भी है, तो इसका क्या हुक्म है शरीयत के अंदर। बात सही है कि सवाल जो है बहुत अहम सवाल है, और इस तरह के सवाल होने चाहिए ताकि हम हकीकत से रूबरू हो सकें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल है कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई मामूली सा गुनाह करते थे तो ऐसा लगता था कि पीठ पर कोई पहाड़ का वजन बैठा दिया, तो उस गुनाह को पहाड़ की जैसा मानते थे। ये असहाबे रसूल है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि हम एक कोई मामूली सी गुनाह या गलती, गुनाह भी नहीं गलती करते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे कांधे पर बहुत बड़ा बोझ हो गया, क्या पता अल्लाह ताला उसकी वजह से हमारे सारे अमाल बर्बाद कर दे और जहन्नम में डाल दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो लोग बुराई को बुरा ही समझते थे, सिर्फ ये कि समझते थे उसको, उस अपने आप को उससे बचाते भी थे कि बुराई है। और यहाँ पर जो आजकल हवाला या दलील जो भी देकर कि नहीं इससे नशा नहीं होता है और नशा वाली चीज़ हराम है, जिसमें नशा हो वो हराम है, तो ऐसे हो तो वैसे हो, इस तरह की बातें कहकर जिस हिसाब से उसको बढ़ावा दिया जाता है, ये किसी एतबार से नाकाबिल कबूल है। मकरूहात का दर्जा कहीं दिया जाता है। हाँ, बहुत सारे दलाइल दिए जाते हैं किसी तरह, वो बोले ना वही बात गुजरी दर्स के अंदर, जस्टिफाई करना किसी चीज को बता रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है गुटखा या जो भी ये सिगरेट वगैरह, इसके बारे में जो एक बहुत सीधी सी बात मैं प्रैक्टिकल बता दूं कि सबसे पहले हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा अस्करा कसीरु फकलीलु हराम, जिसका ज्यादा नशा हराम से थोड़ा भी हराम। जो चीज ज्यादा नशा करती है उसका थोड़ा भी हराम। जैसे शराब ज्यादा पिएंगे तो नशा में आएंगे। अगर कोई कहे कि नहीं हम एक वो जो शीशी का जो ढक्कन होता है उससे पी ले या एक चम्मच पी ले तो हो सकता है क्योंकि हम होश में हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो हदीस बयान की मा अस्करा कसीरहु फकलीलु हराम, जो ज्यादा जिसका नशा हराम उसका थोड़ा भी हराम। समझ नहीं ना? जो ज्यादा हराम है नशा करने, नशा हो जाता है ज्यादा पीने से, उसका थोड़ा भी हराम है। ठीक उसी तरीके से दो चीजें याद रखनी चाहिए कि इसराफ से भी बचना ये जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात ये है इसराफ से बचना, इन फजूल खर्ची से बचना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको अपने एक एक पैसे के बारे में अल्लाह को हिसाब देना है। जहां तक ताल्लुक है जैसे गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ, खैनी हुआ, या भी जब अपने कहा पान हुआ, उसमें एक चीज याद रखें कि क्या इन चीजों से सेहत बनती है कि बिगड़ती है। अगर कुछ देर के लिए सपोज मान लिया जाए कि ठीक है उससे नशा नहीं होता, ठीक है उससे नशा नहीं होता, तो ये बताएं कि क्या उस चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे सेहत में बढ़ोतरी होगी, सेहत बेहतर होगा या बिगड़ेगा। जबकि एक चीज़ देखिए, क्या सबके पैकेट में डब्बे पर लिखा रहता है कि ये चीज़ खाने से कैंसर होता है, ये चीज़ खाने से कैंसर होता है। तो आप सोचिए कि एक चीज़ बताया जा रहा है कि इससे कैंसर होगा, तो आप उसको कैसे कबूल कर सकते हैं? आप कैसे कबूल कर सकते हैं? एक चीज़ ये तो सपोज किया गया। जहाँ तक शरीयत का कानून है, शरीयत ऐसी चीज़ों को हराम मानती है, शरीयत ऐसी चीज़ों को हराम मानती है। अब इसकी दलील देखिए, अगर हलाल है तो आप मस्जिद में सिगरेट क्यों नहीं पीते? आप मस्जिद में सिगरेट पीजिए, मस्जिद में खैनी खाएं, मस्जिद में गुटखा खाएं, आप नहीं खाते क्योंकि आप मानते हैं कि वो हराम। हमको कोई मस्जिद में दूध दे हम पी लेंगे, कोई मस्जिद में खाना लाके दे, हमारा खाना मस्जिद में आता हम खाते हैं, नाश्ता मस्जिद में आता है, खाने में जो कई तरह के पकवान है वो खा लेते हैं। अगर वो चीजें हलाल है तो मस्जिद के बाहर ही हलाल क्यों, अंदर क्यों नहीं? ये कोई हदीस नहीं है, ये मिसाल है कि अगर वो चीज दुरुस्त है। दूसरी बात,
کہ خودکشی حرام ہے. ٹھیک ہے, خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ نے کہا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں دی. اللہ کسی بھی انسان کو, اسی لیے کوئی سوچتا ہے کہ اتنے قرض ہو گئے ہیں, اتنے معاملات ہو گئے ہیں, اب ہم جی کر کیا کریں گے, سماج میں منہ کیسے دکھائیں گے, اس طرح کی بات سوچ کر ایک آدمی اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ بھی تو خودکشی کے زمرے میں آئے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز کھانے سے کینسر ہوگا, کینسر سے موت ہوتی, کینسر سے زندگی ہوتا ہے کیا؟ موت ہوتی ہے. تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے نا. اگر ہم حلال حرام ہٹا بھی دیتے وقتی طور کے لیے, چلو کوئی بات نہیں, نہ حلال ہے نہ حرام ہے, کیا ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ خودکشی. خودکشی تو حرام ہے نا, ابھی تو کنفرم ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھنا ہوگا. اور اگر واقعی میں درست ہے تو آپ مسجد میں کیوں نہیں پی رہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے پیجیے سگریٹ, حلال ہے تو کہیں بھی پی سکتے ہیں. یہ سمجھنا ہوگا. شریعت اس کو حرام مانتی ہے. ما اسکر کثیر فقلیل حرام, جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کا کم تھوڑا بھی حرام ہے. اور یہ اسراف بھی, فضول خرچی ہے, اس سے کچھ فائدہ ہے نہیں اور ہم پیسہ لگائے جا رہے ہیں, یہ اسراف بھی ہے. سر ایک سوال آؤٹ آف ٹاپک ہے لیکن آیا ہے آن لائن میں, وتر کی نماز ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ وتر کا نماز کیا ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بھی بات بول دیجیے آؤٹ آف سے. یہ جو سوال ہے یہ سلیبس کے باہر, یعنی جو درس میں جو آیت تھی اس کے باہر کا سوال ہے. لیکن سوال چونکہ آیا ہے تو جواب ہونا ہی چاہیے کہ وتر کیا ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں ثابت ہیں. آپ نے ایک رکعت بھی پڑھا ہے, 3 رکعت بھی پڑھا ہے, 5 رکعت بھی پڑھا ہے. اور حکم ہے کہ وتر جو ہے آپ طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, آپ طاق میں وتر پڑھ سکتے ہیں. طاق عدد ہونی چاہیے. تو ایک رکعت وتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ نے پڑھا ہے. 3 بھی آپ نے پڑھا ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ پڑھیں. اگر 3 پڑھا, اس لیے کہ دیکھیے اس میں ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے. یہ بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں, زیادہ 3 پڑھنی چاہیے, ایک کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. تو ایسی کی بات نہیں. آپ چاہے تو ہمیشہ ایک پڑھیں, آپ چاہے تو ہمیشہ 3 پڑھیں, آپ چاہے تو کبھی ایک کبھی 3 پڑھیں. تو ایک رکعت وتر جائز پڑھ سکتے ہیں, طاق میں ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہوگا امام صاحب؟ وتر کا طریقہ وہی ہے جیسے نماز کے لیے سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے, یعنی اللہ کو کی نیت مانیں گے. اس کے بعد ثنا سبحان کا پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو صورت یاد ہوگی اس کے ساتھ ملائیں گے. اس کے بعد ملانے کے بعد رکوع سے پہلے بھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, یا ہاتھ چھوڑ کے, یا رکوع میں چلے جائیں گے, رکوع کے بعد میں دعا قنوت پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقہ صحیح ہے, رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی. یہ ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے, پڑھ لیے. اس کے بعد سجدہ تو کر ہی چکے ہیں, رکوع کر چکے ہیں, سجدے میں چلے جائیں گے, 2 سجدہ کر کے تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں گے. 3 رکعت کا وتر پڑھیں گے تو 2 رکعت پر تشہد میں نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں, اس میں ہم کھڑے ہو جائیں گے. سوال آتا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو, ہاں جسے بھی سوال ہے کہ بہت سے بھائیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے, تو کیا پتا کہاں سے دلیل آتے ہیں, کچھ بھی پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے, سبحان اللہ یا اللہ اکبر, اس کو یاد کرنا ہوگا. مسئلہ یہ کہ اس کو یاد کرنا ہو. بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو نہیں آتی تھی لیکن ہم لوگوں نے سیکھا. بہت سے لوگ 50-60 سال کی عمر میں بائک چلانا سیکھتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, کچھ مشکل نہیں ہے. تو جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے ان کو یاد کرنا, یاد کریں. اور یاد کرنے کے بعد, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت درست ہو. اور وتر کی بڑی اہمیت ہے, وتر کی نماز کی. ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے وتر نہ پڑھے, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی پورے دن کی. اتنی زیادہ اہمیت ہے وتر کی. تو ہم اس کو یاد کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالی یاد کریں. ایک سوال ہے, جیسے کوئی صاحب مال ہے, وہ چاہتا ہے کہ یتیم کی ماں سے نکاح کرے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ثواب ہے, لیکن اس آیت سے ڈرتا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو, 2 سے 3 سے 4 سے, لیکن اگر تم ان کے بیچ میں یکسانیت نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. تو یہ آیت سے وہ ڈر بھی رہا, اور ادھر ایک طرف وہ چاہ رہا ہے کہ ہم صاحب مال ہیں, ہم اس یتیم کو اور یتیم کی ماں کو اپنے وہ پہلے سے شادی شدہ بھی, اور دوسرا بیوی بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی مالدار ہے, پیسے والا ہے, اور آلریڈی شادی شدہ ہے, پھر وہ مالدار ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے,
देख रहा है कि हमारे मुआशरे में कोई ऐसी औरत है जो यतीम है और वो चाहता है कि उससे दूसरी निकाह कर ले, दूसरी बीवी बना ले, इस हिसाब से उसके बच्चे की किफालत भी कर लेगा और एक तरीका भी सही है और एक खिदमत खल्क और एहसान का मामला है। लेकिन वो डर रहा है कि कुरान में है कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल ना कर सको बीवियों के दरमियान तो एक ही करो, तो ये हुक्म उसके लिए भी है, ये हुक्म तो उसके लिए भी। जवाब इसका यही है कि अगर उसको डर है तो ना करे, अगर उसको डर है तो ना करे शायद, क्योंकि एक चीज को बेहतर बना के दूसरी चीज खराब नहीं कर सकते, समझ रहे ना। अगर डर है कि हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो ना करें, है कि अल्लाह ने दिया हम कर लेंगे कर ले, अच्छी बात है। और एक सवाल ये भी मतलब है। ये इंसाफ जो आता है ये मतलब दुनिया बाहरी चीज में इंसाफ या हर कुछ में? हर मामला में इंसाफ, हर मामला में। कितना वक्त आप पहली बीवी को दे रहे उतना ही वक्त दूसरी बीवी को दे, जो चीज उसको खिला रहे वो चीज इसको भी खिलाए, जो उसको पहना रहे वो इसको भी पहनाए। ये तंज और ताना का मामला ना होगा तुम 2 नंबर हो वो 1 नंबर है, कुछ भी नहीं। जितना ख्याल तुमको आप उसको रख रहे हैं उतना ख्याल आपको इनको भी रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बांध लिए थे, आपकी 11 बीवियां थी तो डेट फिक्स था 1 तारीख 2 तारीख 11 तारीख, फिर 11 से फिर वो बारी फिर दोबारा। और एक छत के इमाम साहब एक छत के नीचे भी नहीं रह सकते, क्यों नहीं रख सकते? ऐसा है कि एक छत के नीचे नहीं रह अगर सकते। उसका घर ही ना हो किसी का तो क्या करें? जैसे ये घर आपका है, किराए पे रखे नहीं जैसे ये घर आपका है हाँ। तो फर्स्ट फ्लोर में उसको रख दिए, सेकंड नीचे उसको रख दिए, कोई मसला नहीं। हाँ, एक रूम में नहीं रख सकते, जी जी छत और रूम दोनों में फर्क है, एक कमरे में 2 भी नहीं रख सकते। इमाम साहब ये बोल रहे थे कि मुर्तद के बारे में जैसे आपने बताया, तो अगर जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ है तो निकाह माशाल्लाह हो गया, लेकिन वाइफ या हस्बैंड का मुर्तद हो गए तो निकाह खत्म। फिर अगर वो फिर ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर वो रिश्ता बाकी रहेगा, फिर निकाह पढ़ना, फिर निकाह पढ़ाना होगा। जैसे ये हदीस है हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह तआला बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बहुत मशहूर हदीस है। मुगीस और बरीरा जो दोनों थे वो जमाने जाहिलियत में मुसलमान थे, काफिर थे, फिर इस्लाम की किरणें उनके दिलों पर अल्लाह ने फेरी, दोनों मुसलमान हो गए। हज़रत मुगीस वो सियाह फॉर्म के थे, नहीं समझते क्या कैरेबियन हबशी, हाँ, और बरीरा रज़ी अल्लाह तआला बड़ी खूबसूरत थी और दोनों जमाने जाहिलियत में मियाँ बीवी थी। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम का तरीका ये है कि फिर से निकाह पढ़ाना, वो निकाह नहीं चलेगा जो जाहिलियत में या गैर मुस्लिम में उनको पढ़ाई। जैसे कोई ईसाई था तो चर्च में लोगों का निकाह होता है तो अब वो दोनों मुसलमान होते हैं तो फिर से उनको पढ़ाना है। वो हज़रत बरीरा पीछे हट गई, बोली कि मैं आपके साथ निकाह नहीं करूँगी। मुगीस को बड़ा दुख हुआ है तो मुगीस रज़ी अल्लाह तआला को बड़े परेशान थे, तो अल्लाह के नबी के पास खबर गई कि ऐसे मामला था। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलवाया और कहा बरीरा क्यों नहीं निकाह करती, तू तो उनकी बीवी रह चुकी है जमाने जाहिलियत में, अल्लाह ने तुमको मुसलमान बना दिया, निकाह कर लो। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आप ये हुक्म दे रहे हैं कि मशवरा दे रहे, अगर आपका हुक्म है तो मैं भी शादी करूँगी, मशवरा तो नहीं करूँगी। यानी अल्लाह के रसूल ने भी माना कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, कोई किसी पर प्रेशर ना दे, दबाव ना डाल सके, इसी से करना होगा, यही खाना होगा, यही पहनना होगा, ऑप्शन है भाई तो निकाह पढ़ना, लेकिन निकाह नहीं रह सकती। मुसलमान होते ही निकाह टूट है ना। हाँ, ठीक है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती रखे, आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।